mental illnesses are family disease. In this, we get unwell due to our illness. And staying with us, the family also get unwell. They go through extreme amount of anxiety, insecurity, guilt, rejection. They go through extreme amount of anxiety, guilt, rejection about your illness. They are not able to accept our illness as a illness, rather keep blaming themselves for their illness, for your illness. So they go through anxiety, depression, guilt or illness. तो उनके मन में ये फीलिंग आने लगती है कि आप लोग इसलिए बीमार हो बिकॉज उन्होंने कुछ गलत किया, उन्होंने आपको ठीक से गाइड नहीं किया। पालन पोषण में गलती हो गई। पालन पोषण में गलती हो गई। देखो, कोई भी माँ बाप मान सकते हैं जानबूझ के गलती नहीं करते। देखो, गलती तो किसी से भी हो सकती है। आई कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक। लाइक एक डॉक्टर ने दवाई दी, अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को रिएक्शन हो गया और उसकी डेथ हो गई। गलती तो हुई। अब लेकिन डॉक्टर को थोड़ी पता था कि इस दवाई से रिएक्शन हो जाएगा, है ना। सो उसी तरह से ये बाय नेचर पेरेंट्स आर नॉट समबडी हु विल इंटेंशनली ट्राई टू हार्म यू। बाय नेचर दे आर, देखो ना, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को जानबूझ के गलत नहीं कर सकते। गलती हो जाए वो तो बात है, ठीक है। Now it's our responsibility. देखो, now it's our responsibility. So they go through anxiety, guilt, rejection about your illness. उसके बाद Now it's our responsibility to heal ourselves and subsequently help our families to heal. पहले हमें अपनी मदद करनी है, अपना आप को ठीक करना है और सब्सिक्वेंटली अपनी फैमिली को भी हेल्प करनी है हील करने में। But so sometimes parents think that they are smart. That is equal to over smartness for us. हमें लगता है कि over smart. This is not going to be an easy task. so your friend. But Is your friend? yes, this is not going to be an easy task. As we have lost all the credibilities for a prolonged period of time. Nobody takes us seriously. Nobody takes us seriously. We have to first work on ourselves and build our credibility. As we have lost our credibility and nobody takes us seriously. Yes. We have to first work On ourselves Build ourselves. Build our credibility. An image kind of thing. There is a concept of express emotions. nobody takes us seriously. Where in millions of patients it was studied that these are the reasons in frequent relapsers. Frequent relapser के express emotions कारण थे. So, where in million of cases it was discovered
They have frequent relapses due to express emotions. Okay. अब E के लिख लो critical comments, hostility and over involvement. Expressed emotions. Yes. ब्रैकेट में लिख लो जो ये तीनों हैं. Sarcasm भी सही था, सही था. Sarcasm भी सही था. Sarcasm भी सही था. Critical comment, hostility and over involvement. So ये बात प्लीज मेरे पेरेंट्स को बता दीजिए. Express emotions where The millions बहुत जरूरी है. millions relapse more frequently. So more relapses means मतलब बार बार बीमार हो जाते हैं. अब वो लिख लो ये तीनों. Critical comment, hostility and over involvement. सर ये चीज प्लीज मेरे पेरेंट्स को बता दीजिए. Just this point. It is very relevant. ये सब लोग उठ के क्यों जा रहे हैं? देवेश कहाँ जा रहे हो आप? क्यों? बच्चे हो क्या? Sorry, but pen is slipping from my hand. हाँ? Pen is slipping from my hand. तो क्या बात समझ में आई अभी तक? सर हमें पहले अपने आप को विनर करना है. फिर अपनी फैमिली को करना है. बट फैमिली आपको विश्वास नहीं करेगी बिकॉज आपने इतनी बेवकूफ़ियाँ की हैं. हमने इलनेस में इतनी बेवकूफ़ियाँ की हैं तो हमें विश्वास करेगी नहीं. अब आपको विश्वास जनरेट करने के लिए पहले तो अपने आप को ठीक होके दिखाना पड़ेगा. जब आप ठीक होगे तो धीमे धीमे उनको समझ में आएगा कि अब ये बंदा ठीक है. फिर It's a आप long process. No, it's not a long. So I earned enough. I know my parents put me again with my relapse, but I was doing my art and craft classes very nicely with the school children. बेटा आप देख मुझे लगता है कि अननेसेसरीली क्लैरिफिकेशन देते रहना ना अपना आप को मिसगाइड करने जैसा. मुझे लगता है इन टोटलिटी अपनी पिक्चर को देखना एंड यू विल नो इट व्हाट आर द रीजंस. I know myself better than anyone else in Yes. this world. सर वैसे एक पॉइंट है अगर हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो फैमिली नेचर अपने आप ठीक हो जाएगा. ये अमन ने बहुत अच्छा पॉइंट किया. अमन ये कह रहा है कि हम अगर ठीक हो जाएंगे तो क्या फैमिली अपना आप ठीक हो जाएगी? मुझे लगता है नहीं. नहीं. देखो अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, मेंटल इलनेस की इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों को है. एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट की इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों को है. तो कहीं ना कहीं ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम कभी भी बीमार पड़ सकते हैं. अब अगर हम एक बार ठीक हो गए और वो भी ठीक हो गए, थोड़े दिनों बाद हमारी तबीयत फिर से खराब हो गई. हमने कुछ नहीं किया, हम सब कुछ फॉलो कर रहे थे, दवाई भी खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे. Triggers. तो वो फिर वही वैसे ही हो जाएगा ना. तो धीमे धीमे ओवर द टाइम फैमिली की ट्रस्ट और वो जो है वो इतना खराब हो जाता है कि वो ठीक नहीं होने वाला है. वो रिपीटेडली उन्हीं साइकिलों में उलझते रहते हैं. तो उनको भी काम करना पड़ता है और ऑनगोइंग सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने पड़ते हैं. एक बड़ी मजेदार चीज हुई. क्या हुआ, मैं एक ना हाफवे होम चला, एक एनजीओ रन करता हूँ. वहाँ पे करीब 50 पेशेंट्स हैं. जो लॉन्गेस्ट स्टेइंग पेशेंट है वो करीब 19 ईयर्स से मेरे साथ है. कितने साल से? 19 साल. the orphanage. So it's a halfway home for mentally sick. So 19 ईयर्स से एक लेडी रह रही है, मीनाक्षी अग्रवाल नाम है. तो जब वो मेरे पास आई उसकी बच्ची 5 साल की और वो इसलिए आई कि वो बार बार बीमार पड़ती थी और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई. तो उसके जेठ जी थे, उन्होंने कहा भाई मैं बच्ची का देखभाल कर लूँगा मगर मैं इसको नहीं रख सकता अपने घर.
क्योंकि वो बार बार ऐसा कह देती थी कि इन लोगों ने मेरे साथ कुछ किया, कि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि मेरे ऊपर कल को कोई ये कहे फिंगर उठा के कि यार इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया। ठीक है, अब जब वो आई ना, उससे पहले 3 साल मैंने उसका ओपीडी में ट्रीटमेंट किया, 6 बार उसको इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी और वो ठीक ही नहीं होती थी। और उसकी बहन ने सुसाइड किया, उसके भाई ने सुसाइड किया, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री थी मेंटल। डीएनए प्रॉब्लम। हाँ, डीएनए प्रॉब्लम। ठीक है, 19 साल से ये लेडी मेरे साथ रह रही है, 19 साल से। और उसके जो जेठ हैं उनके 5 स्कूल हैं। सेंट मार्क करके एक स्कूल है जनकपुरी में, वो उन्हीं का स्कूल है, दे आर द ओनर। 3 फिल्म स्टूडियो हैं, दे हैव 3 फिल्म स्टूडियो। ओके, मतलब दे आर फिल्दी रिच। और घर पे उसे हर तरह का कंफर्ट था, ऐसा नहीं कोई काम करती थी, कुछ करती थी, पैसे नहीं थे। 3 साल में 6 बार बीमार हुई और 19 साल में 1 बार भी बीमार हुई। आज की तारीख में वो 50 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। शी इज MA इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। 50 बच्चों को रोज ट्यूशन पढ़ाती है और उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी अप एंड डाउन होता है, मगर सब निप जाता है। बिकॉज कोई फालतू के फैमिली के रिएक्शंस, नाटकबाजी, ये सब कुछ। Can I ask one thing? So electric shock treatment has been banned by WHO, World Health Organization, and it's no more practiced in by any part of the country. Banned recently. It was not banned before. No, it's not banned. It's not banned. No, but it's all not. doctors are- मुझे मिले हैं। It's not banned, and it's one of the best treatment. Okay. I have come across all my doctors. They told me it's banned. Wait. Thank you for telling me that. It is one of the best treatment in certain situations. अगर कोई पेशेंट सुसाइडल होता है ना, जो ये कह रहा है कि मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, मैं तो अभी मरना है मुझे, उस कंडीशन में ECT वर्क्स द बेस्ट। बट डेफिनेटली लेकिन मुझे एक मिनट, पिछले 25 साल में मेडिसिन हमें बहुत अच्छी मिल गई है। पहले बहुत घटिया मेडिसिन थी और वो उतना अच्छा काम नहीं करती। सो पिछले 25 साल में भी 17 साल में मैंने एक भी पेशेंट को ECT नहीं लगाया। रादर इतनी बड़ी फैसिलिटी में मेरे पास ECT लगाने का प्रोविजन ही नहीं है। बट इट्स नॉट बैड। गवर्नमेंट ने No, that पहले डायरेक्ट ECT लगा देते थे, किसी भी बंदे को पकड़ते थे और इलेक्ट्रिक शॉक लगा देते थे, उसको बैन किया है। उन्होंने कहा है कि बेहोश करके ही ECT दिया जाएगा और 2 डॉक्टर इवैल्यूएट करके देंगे। सो ये नहीं है कि बैन है। the Dr. Raheja said and Dr. Deepak Trivedi, lot of doctors, Dr. Patnaik. अच्छा यार, मैं तुझे ऐड दिखा दूं। सर It's ECT एडिक्ट्स पे काम क्यों नहीं कर रहे? क्या पता They say कि it's refused, it's banned, completely banned by WHO. डॉक्टर रेजा तो खुद लगाते हैं। कोई नहीं लगाते। असल में सेंटर अच्छा, क्या एडिक्स पे काम? देखो बेटा, जो एडिक्स का हाइपोथेसिस है या जिन सर्किट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं वर्सेस जो मेंटल इलनेस है। सो एडिक्ट में तो ये काम नहीं करेगा। सर हम भी तो मेंटली इल हैं, मेरे साथ नहीं, मेंटली इल है, बट हमारे को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ठीक होना है और वहाँ पे केमिकल इम्बैलेंस हो गया, उसको ठीक करना है। तो बिल्कुल फर्क सिचुएशन। वाटर ब्रेक ले तो सर अब तो हाँ? वाटर ब्रेक ले तो वाटर ब्रेक फैमिली का कच्चा खत्म कर लेते हैं पहले। तो आप फैमिली का आगे बताओ, क्या व्हाट आर योर थॉट्स? So I feel that cure for burnt out is not self-help or self-healing. It is a group work. My whole family should be together while we are curing the burnt out or the
damages or whatever is happening in the family. We all should be supportive of each other. Then only we will recover. सर हमारी फॉल्ट है, हम फैमिली की सुनता ही नहीं है. Sir, actually it's a So time. in my view, there's one thing that family needs to understand, that they also need to listen to their children, because it's important to listen to their children. And so I feel that there's a very different role played by the doctor or the parents. सर हमारी बीमारी से Because पहले sometimes you need to have someone to explain to them, because if children and parents talk to each other, already the matter is out of hands. So to control and to balance it, we need somebody to balance it out. And immediately we just can't go ahead and tell them, because as you said, credibility is lost. So then over a period of time we might just gain the credibility. हाँ सर हमारी बीमारी से पहले भी हमारी फैमिली में ये सिम्टम्स हो सकते हैं. हाँ हो सकते हैं. तो सर हमारे ठीक होने के बाद तो वो बने ही रहेंगे. बीमारी को पता चलने के बाद भी नहीं, ये भी हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स में से कोई खुद ही बीमार हो. Exactly. So probably भी हो they've सकता had broken family themselves. So ये भी हो सकता है. Sir, practically मेरे पास 26 years, 27 years of recovery जो अभी तक ले रहे हैं. अभी तक के उनकी फैमिली में भी ऐसे डिसऑर्डर्स चल रहे हैं उनके और उनके एडिक्शन के बीच में, जो रिकवरी में है. 26 साल लेकर रिकवरी में. अच्छा, मैं तुम लोगों को एक एडिक्शन वाली एक बड़ी मजेदार स्टोरी और और इसने पूछा था मुझसे कि अगर कौन पूछ रहा था मेरे घर में कोई पीता है तो क्या होगा. हाँ, तो क्या हुआ, पानी का ब्रेक दे दो पहले. 5 मिनट. एक ना बड़े मैं हाई फाई फैमिली का ट्रीट करता हूँ. मतलब उनके पास 7 अपने एयरक्राफ्ट, पर्सनल जेट 7. ना उनका बेटा मल्टीपल टाइम्स यहाँ एडमिट हो चुका है और अचानक से उनके पिताजी का फ़ोन आया कि मैं बड़े स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ, मुझे आपसे मिलना है. तो मैंने सोचा बेटे की तबीयत फिर से खराब हो गई होगी, ये उसी लिए बुला रहे होंगे. तो उन्होंने स्टोरी चालू करी कि आजकल मैं जा रहा था और प्लेन में और मुझे सोना था तो मैंने 100 ml अल्कोहल पी ली, नाप के पी 100 ml, ज़्यादा नहीं पी, और मैं सो गया. और आजकल मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बगैर अल्कोहल के मेरी लाइफ ठीक नहीं चल रही है. मुझे सुबह भी पीना पड़ता है, शाम को भी पीना पड़ता है, और आई एम गोइंग थ्रू a lot of trouble time. I need help. I don't want to go through this kind of a situation. Okay. Now मैं ये सोच रहा था कि 15 साल तक बेचारा अपने बच्चे का इलाज कर रहा था और आज अपना इलाज कर रहा है. ठीक है, बट या दैट्स हाउ द लाइफ इज. मैं आप सब लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल मैं बीमार नहीं हो सकता, या एक कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, या एक डायबिटीज़ के एक्सपर्ट को शुगर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकती. रादर साइकेट्रिस्ट में एडिक्शन का रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है. yes, sir. Suicide rate and substance abuse rate in psychiatrists is highest in the world. So definitely हम लोग बीमार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी फैमिली में अनवेलनेस नहीं हो सकती. So we should all care for each other. बट डेफिनेटली आज की तारीख में देखो, आप लोग मेरे सब्जेक्ट हो, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ. आपकी फैमिली मेरी एड ऑन सब्जेक्ट है. आपकी रिकवरी के लिए मुझे फैमिली को ठीक करना है, बट मैं फैमिली के लिए बॉदर्ड नहीं हूँ. मैंने उनकी जिम्मेदारी नहीं ली है. मैंने किसके इलाज की जिम्मेदारी ली है? आप लोग. सो कंसिडरिंग दैट मेरी तो देखो प्रायोरिटी आप लोग हो. मैं आपकी फैमिली को कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देने वाला हूँ. हाँ, थोड़ा बहुत जितना आपके लिए मुझे फैमिली में काम करने की ज़रूरत है, बट ये भी हो सकता है कि वो लोग इंडिपेंडेंटली अनवेल हैं और उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी विच इज़ वेरी कॉमन. सो
डेफिनेटली ये किसी भी तरह ये सिचुएशन नहीं बनाता है कि भाई हम बीमार हैं तो वो बीमार नहीं है. So I am not defending any of your family members. They don't require help. Lot of them require help, and this is an unfortunate part that they are not coming forward or they are not accepting help. And one of the reasons maybe you require a repeated treatment is because maybe your family is also unwell. So parallel treatment हो सकता है सर इस चीज़ में? हाँ हो सकता है, बट वो मोटिवेटेड तो होने चाहिए. वो मोटिवेटेड होने चाहिए अपना ट्रीटमेंट करने के. सर डिसऑर्डर तो हर किसी को होता है, हर इंसान को. किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है. नहीं होता है. There's no perfect perfection is the best. करते हो वो तो हर There's no अलग अलग perfect ही आएगा. किसी को problem Even Viren को होगा, कोई borderline को होगा, कोई schizophrenia Putin is a psychopath. अब पता नहीं क्या है. कुछ तो ऐसा दूर कर रहा है psychopath. चलो, so water break.